रोज़ हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। आज भी हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवत गीता से आज कौन सा श्लोक आ रहा है। आज श्लोक नंबर 20 ऑफ चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस आया है। ये तो धर्मामृताम इदाम यथोक्ताम परयूपसते श्रद्धा धनामत्परमा भक्तास्तेतिवा मे प्रियः. Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal and very dear to me. In this chapter, from verse 2 through the end, from Mai Avesya Mano Me Mam, fixing the mind on me through ye tu dharmamritam idam, this religion of eternal engagement, the Supreme Lord has explained the process of transcendental service for approaching Him. Such processes are very dear to the Lord, and He accepts a person engaged in them. The question is, who is better? One who is engaged in the path of impersonal Brahman, or one who is engaged in the personal service of the Supreme Personality of Godhead? Was raised by Arjun, and the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service to the personality of Godhead is the best of all processes of spiritual realization. In other words, in this chapter it is decided that through good association one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment and devotion, and thus becomes engaged in the transcendental service of Lord. This path is recommended in this chapter. Therefore, there is no doubt that devotional service is the only absolute path of self-realization for the attainment of Supreme Personality of Godhead. The impersonal conception of Supreme Absolute Truth as described in this chapter is recommended only up to the time one surrenders himself for self-realization. In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. In the impersonal conception of absolute truth, one works without fruitive results, meditates and cultivates through to understand spirit and matter. It is necessary as long as one is not in the association of a pure devotee. Fortunately, if one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. Devotional service as described in the middle 6 chapters of Bhagavad Gita is more congenial. One need not bother about materials to keep body and soul together, because by the grace of the Lord everything is carried out automatically. So यहाँ पे पूछा गया था कि क्या अर्जुन ने पूछा था, ये हमने पहले भी रीड किया था कि क्या डिवोशनल सर्विस करना अच्छा है या इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ सर्विस अच्छा है। आई थिंक ये एकदम फर्स्ट श्लोक में, ये तो 20 श्लोक का चैप्टर है, तो इसमें शायद एकदम फर्स्ट श्लोक में ही पूछा था अर्जुन इंक्वायर टू कि कौन सा परफेक्ट मोड है कि हम डिवोशनल सर्विस करें या फिर इम्पर्सनल फॉर्म को हम पूजें। तो भगवान ने बोला था जो मुझे पर्सनल फॉर्म में याद करते हैं और हमेशा ही मुझे वर्शिप करते रहते हैं, हमेशा मुझे मतलब उनका दिमाग पूरी तरीके से मेरे अंदर ही स्थित है, मेरे पर्सनल फॉर्म में, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. उनको मैं परफेक्ट मानता हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद में भगवान ये भी बोला, बट दोज हु फुल्ली वर्शिप द अनमैनिफेस्टेड, जो पूरे हृदय से भगवान के निराकार स्वरूप को ही, मतलब उनकी एनर्जी को, उनकी शक्तियों को पूजता है, जो विच लाइज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ द सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन्स के मतलब उससे भी ऊपर है, उसके बियॉन्ड है, उसके आगे है। जैसे कि आप आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, स्किन टच नहीं कर सकते, या फिर आप भगवान का प्रसाद नहीं पा रहे तो जीवा से उसका सेंस नहीं कर पा रही है, उनका नाम कीर्तन सुन नहीं रहे हो, कुछ नहीं, बट सिर्फ आप भगवान की एनर्जी को फील करते हुए उनके प्रति पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हो उनकी एनर्जी को, तो पूरी तरीके से जो इनमूवेबल, मतलब फिक्स्ड, एकदम हर तरीके से फिक्स्ड बना रहता है उनके एनर्जीज के प्रति,
अपने पूरे सेंसेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता है, वो भी बहुत ज़्यादा भगवान के प्रिय होते हैं और अल्टीमेटली वो भगवान को अचीव कर लेते हैं। बट क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप इम्पर्सनल रूप में भगवान को पूछते हो तो उसमें ना हम एक्चुअली कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन हट जाती है कि ऐसे ही निराकार रूप में तो देखो भगवान के अलावा भी बहुत सारे और भी डिस्ट्रैक्शंस आसपास घूम रही है, तो माइंड को पूरा फोकस करके रख पाना कभी कभी मुश्किल होता है। पर उस तरीके से पूजना भी भगवान के लिए बहुत ही पसंदीदा है, अगर वो सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके रख पाए। लेकिन पर्सनल फॉर्म में भगवान को प्रिय इसीलिए है क्योंकि एक तो उनको वो सेंस ऑर्गन से हम भी अपने प्रेम को जता सकते हैं, तो उनको प्रेम महसूस होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि जब हम भगवान के प्रति पर्सनल रूप से पूजा पाठ करते हैं तो हम खुद भी फोकस करके रह पाते हैं, तो हमारी फोकस भी बहुत अच्छे से बनी हुई रहती है। ठीक है। सो for those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the supreme, advancement is very troublesome. उनके लिए बहुत troublesome होता है एडवांसमेंट करना, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, शरीर में रहते हुए एकदम कोई भी डिस्ट्रैक्शंस के प्रति मन ना जाए और पूरी तरीके से भगवान पे मन लगा रहे, फिक्स बना रहे, उसके लिए पर्सनल फॉर्म यानी कि भगवान के स्वरूप के ज़रिए याद कर पाना ज़्यादा अच्छा होता है, उनके नाम जाप से ज़्यादा अच्छा होता है, उनके नाम कीर्तन को सुनना ज़्यादा अच्छा होता है। आप भगवान को उनके विग्रह को स्पर्श करते हुए महसूस करते हुए नाम लेंगे तो आपकी फोकस बनी रहेगी, इट्स बेटर फॉर फोकस। और बाकी सारी चीज़ों में ना आपके माइंड फिक्स होने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, अगर आप माइंड डिफ़िकल्टी में चला जाएगा या फोकस नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं, अगर आप फोकस कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो, जो मोस्टली नहीं कर पाते लोग, तो उसके लिए परेशानी होती है। और परफेक्ट स्टेज तक आने के लिए भक्ति योग में प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए विग्रह साधना से हेल्प होती है। पीपल कैन फोकस मोर एंड उसमें आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बनी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक है, तो जो किसी भी तरीके से भगवान के प्रति एनवियस नहीं होता है, किसी भी चीज़ से उसके अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं है कि मैंने किया, उसको सरेंडरिंग एनर्जी में है, वो हमेशा ही खुश रहता है, दुख में भी खुश मतलब हर चीज़ में उसकी इमोशन सेम रहती है। जो टॉलरेंट रहता है, हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, खुद को कंट्रोल कर पाता है, वही है भगवान के अत्यंत ही प्रिय। जो हर तरीके से, ये हमने मल्टीपल श्लोक्स में, ये तो डिवोशनल सर्विस चैप्टर में है और मल्टीपल चैप्टर्स में मल्टीपल टाइम हमने इसको पढ़ा है कि भगवान के प्रिय यही होते हैं जो दुख में, सुख में, गुस्से में या फिर नेगेटिव सिचुएशन में या पॉजिटिव सिचुएशन में, हर सिचुएशन में ही वो हर तरीके से एक ही जैसा व्यवहार करते हुए हर टाइम भगवान को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने रोम रोम में बना करके रखता है, वही एकमात्र सही इंसान होता है। ठीक है। वन हु नीदर रिजॉइसेस नॉट ग्रीव्स, जो ना ही बहुत ज़्यादा खुशी मनाता है ना ही दुख मनाता है, जो हु नीदर लैमेंट्स नॉट डिज़ायर्स, जो दुखी भी नहीं होता ना ही वो खुश होता है, एंड हु रिनाउंसेस बोथ ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस थिंग्स सच अ डिवोटी इज़ वेरी नियर टू मी, जो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देता है और पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं भगवान के। One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness, distress, fame, infamy, always free from contaminating association, always silent and satisfied without anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. तो कैसा इंसान बहुत ज़्यादा प्रिय है भगवान के, जो हमेशा ही अपने फ्रेंड्स और एनिमीज़ के प्रति इक्वल बिहेवियर रखता है, जो इसको सम्मान दो या असम्मान करो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो गर्मी में, सर्दी में, खुशी में, दुख में, ये उसको फेम मिले या ना मिले, हर सिचुएशन में खुद को नेगेटिविटी से दूर रखता है, साइलेंट रहता है, जो भी मिलता है उससे खुश रहता है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है, उसको सिर्फ नॉलेज से भरा हुआ रहता है और हर टाइम भगवान का भक्ति आदि सेवा करता रहता है, वो भगवान के अत्यंत ही प्रिय होता है। सो दोज हु फॉलो दिस इम्पेरिशेबल पाथ, ये सारे पाथ को जो फॉलो करता है डिवोशनल सर्विस के, कम्प्लीटली एंगेज करके रखता है खुद को और भगवान को ही अपना सुप्रीम गोल बना के रखता है, वो भगवान के अत्यंत ही प्रिय होते हैं। ठीक है, जो ये बात बोला जाता है कि अंतकाले जो भी आप स्मरण करोगे वही चीज़ को आप प्राप्त करोगे, अगर हम जिंदगी भर भगवान के स्मरण में रहे और अंतकाले अगर हम नेगेटिव स्मरण में चले गए बाई चांस, उसके लिए तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, पर भगवान ज़रूर आपके कर्म को कंसिडर करेंगे और इस हिसाब से आप एंटायरली जो काम करते जा रहे हो उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो रहेगी। ठीक है, सो जस्ट यू हैव टू वेरी श्योर कि हर मोमेंट में दुनिया में कभी भी कुछ हो सकता है, हर मोमेंट में कृष्ण भगवान के जाप आदि करते रहो और उनको प्राप्त करने के लिए खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ को भरते रहो। ठीक है, आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।